Hello dear students, myself Rajesh Kumar, and today we are going to start the next part of the chapter, that is the migration for the class 12th geography and part 2. Clear? So in the last lecture we have discussed what is the migration and what is the three babes of the Indian diaspora, and also we have discussed what is the meaning of the diaspora. So when a community move from one place to another place, that is called as the diaspora. Then we have discussed what are the major streams of the migration, so in which we studied the rural to rural, rural to urban, urban to urban, and urban to rural, and also discussed the why the migration has been happened according to these streams. And also we have discussed one important question, that which type of the migration stream is more prevalent in our country, that is the rural to urban, and why the rural to urban migration stream is more happened in our country because of the employment and other basic facility of the life. So today we are going to start the next topic of the migration, that is the causes of the migration. So this is very important question for the board exam point of view. So first of all, what is the causes means the factor which are responsible for the migration, that is called as the causes of migration, or we can say that how the migration process has been happened. So these are only decided by the causes factors. So these are the responsible factor, through these factor the migration process is going on. So there are multiple types of the causes. So firstly we will discuss the first two causes. The first one is the two broad categories. The first one is the push factor and second one is the pull factor. So push factor means to push, and push factor are the negative factor. Clear? Push factor are the negative factor, while the pull factor are the positive factor. So what is the pull factor? Pull factor like poverty, unemployment, lack of transportation, lack of communication, lack of basic facility of the life, and these are called as the push factor. Due to these factor, people want to move to another place for better opportunities. And what are the pull factor? Pull factor are the positive factor, like the good employment, good industrial growth, good transportation, good communication facilities, basic facilities of life is there, good sanitation, good health, education facilities are there. So put pull factor behave like a magnet that attracts the people, that attracts the, so these pull factor mean the good facility, so these attract the people, and push factor means these are the negative point, the lacking point where the people move due to these push factor. So just take a look about the pull factor. So dear student, these are the push and pull factor. So push factor that is in the origin of countries of origin, and pull factor countries of destination. तो देखिए पुश फैक्टर कहाँ पे होंगे? जहाँ पे किसी पर्सन का ओरिजिन होगा, हो सकता है दूसरे पर्सन के लिए वही पुल फैक्टर हो, बट उसके लिए पुल फैक्टर क्या रहेंगे, कहाँ पे होंगे? दैट इज़ इन द डेस्टिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. सो फर्स्ट वन, डेमोग्राफिक फैक्टर एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. व्हाट इज़ द डेमोग्राफिक related to the word, that is the demography, and demography is the study of the birth rate, death rate, and the human population, that is called as the demography. So in the push factor, what are the demographic factors? First one, high population growth, young age structure, inadequate educational institution and medical care, and social security. On the other point of view, पुल फैक्टर क्या रहेंगे डेमोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू से? स्टेबल पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, डेमोग्राफिक एजिंग होगी, और वेलफेयर बेनिफिट्स होंगे, एजुकेशनल एंड गुड मेडिकल केयर्स होंगे, सोशल सिक्योरिटी होगी. देन इकोनॉमिकल फैक्टर में फर्स्ट वन, अनएम्प्लॉयमेंट, लो वेजेस, कम दिहाड़ी होगी उन मज़दूरों की, पॉवर्टी होगी वहाँ पे, लो कंजम्पशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, पुअर लिविंग स्टैंडर्ड होगा. ऑन द अदर साइड इकोनॉमिक फैक्टर, इकोनॉमिक फैक्टर्स, पुल फैक्टर्स में क्या होंगे? लेबर की हाई डिमांड होगी, मींस एम्प्लॉयमेंट होगी, हाई वेजेस होगी, वेलफेयर होगा लोगों का, हाई कंजम्पशंस एंड गुड लिविंग स्टैंडर्ड होगा. उसके बाद पॉलिटिकल फैक्टर में क्या रहेंगे? डिक्टेटरशिप होगी, तो लोग क्या करेंगे? मूव करेंगे. उसके बाद शेडो डेमोक्रेसी होगी, मतलब लो लेवल ऑफ डेमोक्रेसी होगा, बैड गवर्नेंस, गवर्नेंस मतलब गवर्नमेंट के थ्रू गलत पॉलिसीज होंगी, तब भी लोग मूव करेंगे. एंड पॉलिटिकली अपहीवल, अपहीवल होती है, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी.
क्लियर, एक साल के लिए एक सरकार आती है, दूसरे साल के लिए दूसरी सरकार आ रही है, तो इसमें क्या होगी, उनकी पॉलिसीज़ चेंज होती रहेंगी और लोग जो क्या होंगे वहाँ पे लोग अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेंगे, दैट्स वाई पीपल विल मूव। उसके बाद कन्फ्लिक्ट होंगे, चाहे वो सिविल हो चाहे वॉर हो, कुछ भी हो, टेररिज्म हो सकता है, ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं, वायलेशन ऑफ रूल्स हो सकता है, ऑपरेशंस ऑफ माइनॉरिटी मीन्स माइनॉरिटी को फ्रीडम नहीं होगी, माइनॉरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा। तो पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो पुल फैक्टर में कैसे होंगे, डेमोक्रेसी होगी, रूल ऑफ लॉ होगा, उसके बाद प्लूरलिज्म होगा, मींस जेंडर एंड बोथ मेल और फीमेल को इक्वली फ्रीडम एंड राइट्स होंगे, पॉलिटिकली स्टेबिलिटी होगी, पीस होगी वहाँ पे, सिक्योरिटी होगी लोगों की, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स होंगे, सिविल राइट्स होंगे, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़। उसके बाद इकोलॉजिकल फैक्टर में क्या आएंगे, इकोलॉजिक डिजास्टर, मतलब जहाँ पे डिजास्टर हो गया, अर्थक्वेक हो गया, वॉल्केनो हो गया, वहाँ पे लोग क्या होंगे, वहाँ पे कम होंगे लोग, अगर रह रहे होंगे तो वो मूव करेंगे। देन डेजर्टिफिकेशन मीन्स लाइक इन द राजस्थान रीजन, देन लैक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर शॉर्टेज, सॉइल इरोजन, लैक ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज़। तो दूसरी तरफ क्या होंगे, बेटर एनवायरनमेंट होगा, एनवायरमेंटल पॉलिसीज़ होंगी, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। उसके बाद माइग्रेशन, माइग्रेंट फ्लो एंड माइग्रेंट स्टॉक में क्या होगा, डिसीजन ऑफ द फैमिली और द क्लैन, इंफॉर्मेशन फ्लो, डायस्पोरा, एथनिक ग्रुप, ये सारे के सारे क्या होंगे, पुश एंड पुल फैक्टर ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज रिलेटेड टू माइग्रेशन। क्लियर। देन एक और पॉइंट के ऊपर देख लो, पुश फैक्टर, यहाँ पे जैसे आपको पुश फैक्टर है, पुल फैक्टर, पुश फैक्टर में इकोनॉमिक में कौन से आ जाएंगे, पॉवर्टी, लो वेजेस, हाई टैक्सेस हो जाएगा, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवर पॉपुलेशन। तो दूसरी तरफ पुल फैक्टर में क्या होंगे, इकोनॉमी के अंदर डिमांड फॉर लेबर, हाई वेजेस, जनरस वेलफेयर बेनिफिट्स होंगे, गुड हेल्थ केयर एजुकेशन सिस्टम होगा, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, टेक्नोलॉजी होगी, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग होगी। उसके बाद नॉन इकोनॉमिक में क्या रहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन होगा, पुअर हेल्थ केयर होंगे, वॉर होगा या ऑपरेशन होगा, करप्शन, क्राइम, कंपल्सरी मिलिट्री सर्विसेज। नॉन इकोनॉमिक में दूसरी तरफ क्या रहेंगे, फैमिली एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप, गुड नेटवर्क, राइट्स एंड फ्रीडम, प्रॉपर्टी राइट्स होंगे, लॉ एंड ऑर्डर होगा। सो दीज ऑल आर द पुश एंड पुल फैक्टर। क्लियर। So clear student, these are the causes of the migration, basically push and pull factor. Clear. So I hope all of you understand what is the causes of the migration, and in next two paragraph there is totally detailed explanation related to the causes of the migration. Clear. And next point, the next point is the consequences of migration. अब consequences of migration में है, consequences mean impact. Clear. Impact क्या है, what are the impact of the migration? Clear. So there are different types of the impact of the migration. First one is the economic consequences. अब देखिए पहला consequences है economy की, मतलब जब migration हो रही है तो हमारी economy के ऊपर कैसा impact पड़ेगा। तो देखिए consequences की जब बात आ रही है तो यहाँ पे हम सिर्फ नेगेटिव consequences को ही डिस्कस करेंगे, और वैसे तो consequence दो तरह के होंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट हेयर वी हैव ओनली टू डिस्कस द that is negative consequences. Clear. So first one is the economic consequences, and in economic consequences कि जब माइग्रेशन हो रही है तो हमारी इकोनॉमी के ऊपर, हमारी कंट्री की इकोनॉमी के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। देखिए फर्स्ट वन, जब कोई पर्सन ए पॉइंट से बी पॉइंट से, यानी प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जा रहा है ना, ये इसका प्लेस ऑफ ओरिजिन है, ये प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है, जब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जा रहा है तो यहाँ की इकोनॉमी पे के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर होगा, तो पहला पॉइंट यू कैन राइट, प्रेशर ऑन रिसोर्सेज के ऊपर प्रेशर पड़ गया। क्लियर। उसके बाद वहाँ पे हाई नंबर ऑफ लेबर हो गई, हाई नंबर ऑफ लेबर हो गए, क्योंकि बेसिकली माइग्रेशन किसकी होगी, स्किल्ड और अनस्किल्ड की, तो हाई नंबर ऑफ लेबर हुआ। जैसे हाई नंबर ऑफ लेबर हुआ तो वेजेस क्या हो जाएंगी, उनकी लो हो जाएगी। वेजेस लो क्यों होगी, क्योंकि वहाँ पे उन लोगों में क्या हो जाएगा, कंपटीशन हो जाएगा, हर कोई चाहता है कि एम्प्लॉयमेंट मेरे को मिले। क्लियर। तो लो वेजेस हो जाएंगी, प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर किसके ऊपर आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट के ऊपर। ठीक है, प्रेशर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आ जाएगा, जैसे प्रेशर एम्प्लॉयमेंट के ऊपर प्रेशर मिला आएगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशन हुई तो लोग क्या हो जाएंगे, लोग दैट इज उनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा, जैसे लिविंग स्टैंडर्ड लो हो जाएगा तो वो वहाँ पे किसकी ग्रोथ हो जाएगी, स्लम्स की ग्रोथ हो जाएगी। स्लम्स होती हैं झोंपड़ियाँ, तो स्लम्स की ग्रोथ हो जाएगी। जैसे स्लम्स की ग्रोथ हुई तो वहाँ पे लोगों को क्या होगी, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटी, लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ हो जाएंगी। क्लियर। बेसिक फैसिलिटीज़, लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये सारे के सारे पॉइंट किसके अंडर आ जाएंगे, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के अंडर, ये सारे के सारे। आप देखिए जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले
हाँ, जो नेगेटिव इम्पैक्ट हैं यहाँ पे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दैट इज़ द फर्स्ट पॉइंट, जैसे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी, क्लियर, ओवर क्राउडिंग की कंडीशन वहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद वेजेस लो हो जाएंगी। और बेसिकली माइग्रेशन कहाँ से आ रही है? माइग्रेशन आ रही है उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश रीजन से। कौन सी स्टेट में? पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र, इन रीजन में क्या हो रही है? माइग्रेशन जो है वहाँ पे हो रही है। ओके, उसके बाद ये सारे के सारे पॉइंट किसके अंडर आ जाएंगे हमारे? दैट इज़ ओवर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। उसके बाद आते हैं डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज। देखिए डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेज, डेमोग्राफी क्या है? डेमोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ बर्थ रेट, डेथ रेट, माइग्रेशन, क्लियर, एंड पॉपुलेशन। ये सारे के सारे जब पॉपुलेशन डाटा से रिलेटेड हम सारे का सारा रिकॉर्ड रखते हैं, उस स्टडी को क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक। अब देखिए जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी, माइग्रेशन होगी, तो माइग्रेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा डेमोग्राफिक के ऊपर। यानी मोस्टली देखिए माइग्रेशन में कौन सा लेवल मूव करता है, कौन सा एज स्ट्रक्चर मूव करता है? नियर अबाउट 15 टू 59 एज ग्रुप जो है ये मूव करता है, और इसको हम बोलते हैं वर्किंग एज ग्रुप, क्लियर। और देखिए सबसे बड़ी बात, और कौन मूव करता है? मेल मूव करते हैं, मैक्सिमम जो है मोर नंबर मेल का ही रहेगा। तो प्लेस देखिए, एक जगह पे मेल का नंबर हाई हो जाएगा, दूसरी जगह के ऊपर फीमेल का नंबर क्या हो जाएगा? तो पहला डेमोग्राफिक इम्पैक्ट क्या आएगा? चेंज इन सेक्स रेशो, चेंज इन सेक्स रेशो, क्लियर, चेंज इन सेक्स रेशो हो जाएगा पहला पॉइंट, चेंज इन सेक्स रेशो। उसके बाद क्या हो जाएगा? चेंज इन एज स्ट्रक्चर। हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है ये सारा, पार्ट 1 में। चेंज इन एज स्ट्रक्चर, क्योंकि 15 से 15 59 से लेके एज ग्रुप बढ़ जाएगा, तो उस एज ग्रुप की पॉपुलेशन वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। जैसे ही वहाँ पे एज स्ट्रक्चर में चेंज आ गया, उसके बाद हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हो जाएगी। और ग्रोथ रेट हाई पॉपुलेशन कहाँ पे होगी? प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के ऊपर, क्लियर, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन के ऊपर क्या हो जाएगी? हाई पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी। और दूसरी तरफ लो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, तो लो पॉपुलेशन ग्रोथ कहाँ पे होगी? लो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी प्लेस ऑफ ओरिजिन के ऊपर, जहाँ से वो मूव करके आए। और क्यों मूव करके आए? क्योंकि वहाँ पे पुश फैक्टर है, क्लियर। तो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उसके बाद इम्बैलेंस इन सेक्स रेशो, सेक्स रेशो में भी डिफरेंस आ जाएगा ना, इम्बैलेंस इन सेक्स रेशो, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्लियर। उसके बाद चेंज इन स्किल, स्किल में भी चेंज होगी। पहले वहाँ पे किसी रीजन में हाई स्किल्ड लेबर थी, जैसे माइग्रेशन हुई तो वहाँ पे अनस्किल्ड भी आ गई, तो ठीक है, एज स्ट्रक्चर चेंज हो गया, लोगों का सेक्स रेशियो चेंज होगी, वहाँ पे हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगी, ठीक है। सो दीज आर द डेमोग्राफिक। उसके बाद आते हैं सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। सो सोशल कॉन्सिक्वेंसेज मीन्स जो हमारी सोसाइटी से रिलेटेड है। तो देखिए इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होंगे? सबसे पहले कि पहला पॉइंट तो ये रहेगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल, और इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल फ्रॉम डाइवर्स कल्चर, क्योंकि हर तरह के कल्चर के लोग उस रीजन में आएंगे। जैसे ही वहाँ पे इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल होगा, तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, दैट इज़ एंटी सोशल एक्टिविटीज़, एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी वहाँ पे क्राइम्स के रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ड्रग एब्यूज़ हो जाएगा, अल्कोहलिज्म हो जाएगा, क्लियर। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ द, वहाँ पे क्या हो सकता है उनके बीच में? दैट इज़ राइट्स हो सकते हैं, ह्यूमन राइट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिलीजन से रिलेटेड हो सकता है कुछ, क्लियर। उनके कल्चरल जो सेलिब्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वहाँ पे हो सकता है, फेस्टिवल्स को लेके वहाँ पे राइट्स हो सकते हैं। सो दैट्स इज़ द राइट्स, क्लियर। सो उसके बाद जो, और इसके बीच में क्या है? इट क्रिएट्स सोशल कॉन्सिक्वेंसेज, क्रिएट, दैट इज़ द माइग्रेशन क्रिएट सोशल वैक्यूम बिटवीन टू डिफरेंट religion or multiple different religion, clear. So these are the these are the सोशल कॉन्सिक्वेंसेज। द नेक्स्ट वन इज़ द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। अब एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज इज़ वेरी इजी। जैसे ही कौन सी माइग्रेशन हो रही है इंडिया में? रूरल टू अर्बन, और वर्ल्ड में भी रूरल टू अर्बन, दिस इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट माइग्रेशन स्ट्रीम इन आर कंट्री एंड वर्ल्ड। तो जैसे ये माइग्रेशन स्ट्रीम हो रही है, तो उसके बाद क्या होएगा? मैक्सिमम जो है इसका हमारा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा एनवायरनमेंट के ऊपर। एनवायरनमेंट के ऊपर जैसे मान लो ज़्यादा माइग्रेशन होगी तो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगी ना, ये तो पॉजिटिव पॉइंट हो गया। इंडस्ट्रीज़ की डेवलपमेंट होगी, जैसे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट हुई तो वहाँ पे एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम होगी, एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम हो गई, उसके बाद वाटर पोल्यूशन की क्रिएट हो जाएगा, वाटर पोल्यूशन हो गया, नॉइस पोल्यूशन हो गया, व्हीकल की क्या हो गई? नंबर इंक्रीज़ हो गया व्हीकल्स का, व्हीकल नंबर विल भी इंक्रीज़। जैसे व्हीकल का नंबर इंक्रीज़ हुआ, देन हैप्पीहैज़र्ड ग्रोथ हो गई, ठीक है, हैप्पीहैज़र्ड ग्रोथ होगी वहाँ पे। जैसे हैप्पीहैज़र्ड ग्रोथ हुई, वहाँ पे ट्रैफिक जैम्स स्टार्ट हो गए, ठीक है, ट्रैफिक जैम्स हो गए, ट्रैफिक जैम्स हो गए तो लोगों की लाइफ क्या होगी? लोगों की लाइफ, दैट लाइफ ऑफ द पीपल
विल बी डिस्टर्ब। क्लियर, तो लाइफ क्या होगी, डिस्टर्ब होगी। तो दीज आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। सॉइल इरोजन, डिफॉरेस्टेशन होगा, घर बनेंगे तो लोग पेड़ों को काटेंगे, दैट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन। जैसे डिफॉरेस्टेशन होगा सॉइल इरोजन होगा, सॉइल इरोजन होगा तो सॉइल की फर्टिलिटी लो होगी, फर्टिलिटी लो होगी तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन लो होगी, और उसके बाद लोग कहाँ पे घर बनाएंगे, एग्रीकल्चर एरिया में, तो एग्रीकल्चर लैंड का लॉस होगा, नेचुरल रिसोर्सेज का लॉस होगा। सो दीज आर द एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज। और उसके बाद हम आते हैं हमारे अदर कॉन्सिक्वेंसेज। अदर कॉन्सिक्वेंसेज में मोस्टली क्या है कि जो एम्प्लॉयमेंट की एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है दैट वुड बी डिक्रीज्ड। एम्प्लॉयमेंट का लेवल डिक्रीज हो जाएगा, लोगों की सैलरीज डिक्रीज होगी, वेजेस डिक्रीज हो जाएगी, और पीपल किसको हायर करेंगे, अनस्किल्ड लेबर को। वाई, बिकॉज दे आर चीप। जब वो चीप होंगे तो वो अनस्किल्ड भी होंगे, और जैसे वो चीप और अनस्किल्ड दोनों होंगे तो इसका हमारे डेवलपमेंट के ऊपर क्या पड़ेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये सारे के सारे हमारे कौन से पॉइंट थे, दैट आर द causes and consequences of the इंडियन माइग्रेशन और द माइग्रेशन। क्लियर, तो सबसे पहले देखिए इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट पॉइंट दैट इज विच इज़ द आउट माइग्रेंट, हाइएस्ट आउट माइग्रेंट स्टेट। तो हाइएस्ट आउट माइग्रेंट मतलब सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट से माइग्रेंट होती है, तो आउट माइग्रेंट स्टेट है उत्तर प्रदेश। और इन माइग्रेंट स्टेट कौन सी है, तो दैट इज़ महाराष्ट्र, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे पुश फैक्टर ज़्यादा है, इस रीजन में पुल फैक्टर है। क्लियर, यूपी में पुश फैक्टर, महाराष्ट्र में पुल फैक्टर। ओके, सो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन ऑफ मेल माइग्रेशन इन आर कंट्री, इन इंडिया। तो कौन सा है सबसे इंपॉर्टेंट, तो दैट इज वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। क्लियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव मैक्सिमम नंबर ऑफ इन माइग्रेंट्स। तो कौन रिसीव कर रही है, महाराष्ट्र रिसीव कर रही है। विच वन ऑफ द स्ट्रीम इज डोमिनेटेड बाय मेल माइग्रेंट्स इन इंडिया। तो डोमिनेट स्ट्रीम कौन सी है, दैट इज रूरल टू अर्बन, सी ऑप्शन। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग अर्बन एग्लोमरेशन हैज़ द हाईएस्ट शेयर ऑफ माइग्रेंट्स पॉपुलेशन। तो कौन सा है, दैट इज द मुंबई यूए। यूए की फुल फॉर्म होती है अर्बन एग्लोमरेशन। अब अर्बन एग्लोमरेशन क्या होता है, जब अर्बन एग्लोमरेशन इज द अ लार्ज एरिया और लार्ज अर्बन सिटी। क्लियर, उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन लाइफ टाइम माइग्रेंट एंड माइग्रेंट बाय लास्ट रेजिडेंस, आइडेंटिफाई द मेन रीजन फॉर मेल एंड female selective migration. Third question, what is the impact of rural urban migration on the age and sex structure of the place of origin and destination. Then third point, discuss the consequences of migration in India. So important question hai, and what are the socio demographic consequences of India. Clear, so these are the important questions of this chapter. I hope you understand this chapter. So this migration chapter is very important from the exam point of view, and here two important questions. First one is, what is difference between in migration and out migration, and what are the causes and consequences of migration. और एक और दो टर्म है, एक है एमिग्रेशन, एमिग्रेशन क्लियर है, और एक है इमिग्रेशन। ठीक है, ये दोनों प्रोसेस बेटा, दोनों प्रोसेस होंगी इंटरनेशनल लेवल पे, जब हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन, इमिग्रेशन मतलब इन माइग्रेशन। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन इंडिया से मूव कर रहा है कनाडा को, अंडरस्टैंड, तो इंडिया क्या हुआ, उसका प्लेस ऑफ रीजन हुआ ना, और कनाडा क्या हुआ, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो ये पर्सन जो है कनाडा के लिए इसको हम बोलेंगे दैट इज़ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द इमिग्रेशन, और इंडिया के लिए ये प्रोसेस हो जाएगी एमिग्रेशन। और इंडिया के लिए यही पर्सन, इसको हम बोलेंगे एमिग्रेंट्स, और कनाडा के लिए बोलेंगे इमिग्रेंट्स। Clear, so these are the two important terms. So I hope you understand this chapter, that is migration types, causes and consequences. Thank you.